Hi friends, my name is Ekam Singh. Namaste, Adab, Sat Shri Akal, Jai Hind. I have cleared prelims twice in 2021 and 22 and I am going to appear this year interview, that is UPSC interview 2023. So today is the day 13th April 2023 and today we are going to study a very important topic in Indian history, that is Jallianwala Bagh massacre, which has recently completed in 2019 its 100 years. So this topic is very important for your prelims as well as mains perspective, and also in your interview it will help you. And please listen to this topic very carefully, as a lot of prelims question and mains question will be solved out of this. So let us begin. As you know, every incident has a background behind it. So is the Jallianwala Bagh also. So Jallianwala Bagh important background events were World War I that happened in 1914 to 1919. This was majorly centered around Europe, but India also contributed its forces, and British promised us that after World War I we will be given dominance status. Dominance status, as you know, is not a full-fledged independence, but we will be given some form of autonomy. बट ब्रिटिश डिड नॉट गिव अस एंड अनफॉर्चुनेटली दे इम्पोज्ड ऑन अस रावलेट एक्ट, जिसका सीधा मतलब ये है नो वकील, नो अपील एंड नो दलील। ये एक्ट आया था 1919 में, इसको सिडनी रावलेट ने पास किया था और इसमें आपको बहुत ही अनार्कियल एक्ट था। इसमें आपको कभी भी पकड़ा जा सकता है, कभी भी आपका कुछ भी किया जा सकता है, मतलब ये आपके बेसिक फ्रीडम ऑफ राइट्स के बिल्कुल अगेंस्ट था। तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट तो होना ही था। तो पंजाब एक हॉट सेंटर था क्योंकि ये दिल्ली कैपिटल थी हमारी उस समय, और उस समय पंजाब में अमृतसर और लाहौर दो ऐसे शहर थे जहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हुए थे इसके रिगार्डिंग। तो फिर अब 13 अप्रैल का दिन आता है। So now comes the day of 13th April at 9 a.m. in the morning. There was a traditional Sikh festival that is called Baisakhi. It is very important festival regarding your cropping season. Also, as at that day the wheat is harvested in Punjab, and also it is very important for Sikh perspective also, as there was establishment of Khalsa Panth in Baisakhi day. So Reginald Dyer was the commander of the Punjab police in Amritsar, and the people were protesting for the release of the two people that you know is Dr. Saifuddin Kechu and Dr. Satyapal. Actually, there was a very peaceful protest. As you know that whenever someone is unlawfully detained, there happens protest. So at this time also the protest was going to happen. At 8 p.m. at the night, there was a ban of all processions before on 12th April. So General Dyer opened firing, and you can see that Jallianwala Bagh is like a garden. It is very close to Harminder Sahib, the important place of Sikh place of worship. It is Harminder Sahib. So people gathered around the place. And as you can see from the image, you can see the British officers are firing on the unarmed people who are gathering peacefully. There was no particular religion which died, but all the religions, that is Hinduism, Islam and Sikhism, all three sacrificed their lives in the massacre. So it is very important. So as you can see, as Newton's third law say that every reaction has an equal and opposite reaction. So this event also sparked an aftermath. Our nationalists were very unhappy by the incident, and our famous nationalist Rabindranath Tagore ji renounces knighthood. That is, knighthood is basically a sir title which is given by Queen of England, and it was very important title, and it is equivalent to today's high awards like Padma Shri, Padma Bhushan. So Tagore ji renounced his award in protest of the act. So as you know, there was a committee which was established by the British government, that is Hunter Committee. Hunter Committee is also another committee of education, which it is different from that committee. So Hunter Committee called representatives from Delhi, Ahmedabad and Lahore to seek the witness for the action. and General Dyer was also called in the committee. It is that
that he had other mechanism to disperse the peaceful crowd, but he chose the path of violence just to state that अगर आपको किसी के अंदर भय डालना हो तो आपको कुछ ऐसा मास काम करना पड़ेगा। तो उसे लगा कि हम इंडियंस के मन में भय आ जाएगा, पर वो गलत था। इसने हम इंडियंस के मन में और ज्वाला जलाई फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, और हमें 1947 यानी कि उसके 50 साल के अंदर अंदर ही हमें आज़ादी मिल गई थी। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी ने भी उस समय अपना केसरे हिंद का अवार्ड रिनाउंस कर दिया था। ये केसरे हिंद अवार्ड उन्हें मिला था बोयर्स वॉर के दौरान। बोयर्स वॉर आपको पता होगी दक्षिण अफ्रीका में डच और इंग्लिश के बीच में वॉर लड़ी गई थी। उस दौरान उन्होंने एम्बुलेंस सेवा प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से उन्हें केसरे हिंद का अवार्ड दिया गया था। और उन्होंने इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत सत्याग्रह की शुरुआत कर दी थी। खिलाफत आपको इशू पता होगा, ये टर्की में जो खलीफा सिस्टम था, जो मुस्लिम्स के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर में काम करते थे, उनको ब्रिटिशर्स ने एबॉलिश कर दिया था। तो इसके प्रोटेस्ट में हमारे इंडियन मुस्लिम्स ने प्रोटेस्ट किया था और महात्मा गांधी जी ने ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया था नेशनल मूवमेंट लॉन्च करने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कांग्रेस कमेटी ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी, इसको हम कहते हैं मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। ये मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट एक 1928 में भी आएगी, पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपके जलियांवाला बाग रिव्यू करने के लिए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस मेंबर से मोतीलाल नेहरू जी, CR दास, जिन्होंने आगे जाके स्वराज पार्टी का भी निर्माण किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि ब्रिटिशर्स ने जो मैकेनिज्म लिए वो बहुत कम है और हमें और ज़्यादा मैकेनिज्म चाहिए। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जनरल डायर को अपनी पोजीशन से हटा के वापस इंग्लैंड भेज दिया था। इस इशू को ब्रिटिश के पार्लियामेंट में भी बहुत डिस्कस किया गया था। ऐसे उस समय के हाउस ऑफ कॉमन में एक मेंबर थे विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटिश के आगे जाके प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इस इंसिडेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया था। और हाउस ऑफ लॉर्ड, जो कि उनका राज्यसभा होता है, उनमें जनरल डायर को ऑनर किया गया था और उनके लिए एक फंड भी अरेंज किया गया था उनकी रिटायरमेंट के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस इंसिडेंट के दौरान सरदार उधम सिंह जी और सरदार भगत सिंह जी छोटे बच्चे थे और उन्होंने इस इंसिडेंट के दौरान बहुत सी प्रेरणा ली कि हमें अपनी आज़ादी के लिए काम करना चाहिए। इस इंसिडेंट की प्रेरणा लेते हुए सरदार भगत सिंह जी ने भी बहुत आज़ादी के लिए काम किया था और सरदार उधम सिंह जी ने इस इंसिडेंट को अपने दिल पे ले लिया था और उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक वो माइकल और डायर की हत्या नहीं करेंगे तब तक वह शांति का सांस नहीं लेंगे। तो वह लंदन में गए कैक्सटन हॉल, जहाँ पे हो रहा था कुछ डिस्कशन एक्टिविस्ट का, सुनाम की तरफ से वो गए थे और उन्होंने वहाँ पे माइकल और डायर को असैसिनेट किया था और ये बदला लिया था कि उन्होंने जो हमारे इंडियन भाई बहनों के साथ गलत किया उसका उन्होंने बदला लिया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर पॉपुलर इवेंट पे कुछ ना कुछ किताबें लिखी जाती है, ऐसी जलियांवाला बाग पे भी कुछ ना कुछ किताबें लिखी गई, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन। ये सलमान रुश्दी साहब की बुक है जिनमें इन्होंने जलियांवाला बाग को डिस्कस किया है। और खूनी बैसाखी, ये आप देख सकते हैं नानक सिंह जी की बुक है। इसको अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी एक्नॉलेज किया है। तो ये बुक आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये बुक आप ध्यान रखिएगा। तो आपको मैं बताता हूँ अपॉलजी का कंसेप्ट। अपॉलजीज हम बेसिकली लेते हैं, जैसे बहुत सारी कंट्रीज ने भी रिसेंट में अपॉलजीज दिए, जैसे कनाडा ने हमारे कोटा का मारू इंसिडेंट के लिए अपॉलजी दिया रिसेंटली, पर ब्रिटिशर्स ने अभी तक हमें जलियांवाला बाग की अपॉलजी नहीं दी है। पर अभी रिसेंट में उनके प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे हमारे अमृतसर आए थे और उन्होंने वहाँ जाके इसको शेमफुल स्कार बोला था ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री का। और लेबर पार्टी ने भी इसके बारे में बात की है, पर अभी तक कोई ऑफिशियल अपॉलजी नहीं की गई है इस इंसिडेंट को लेके। अभी रिसेंट में 2019 में इस इंसिडेंट को 100 साल पूरे हुए हैं, तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक इसके ध्यान में कविता मुझे याद आ रही है, यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह शोक स्थान याद मत शोर मचाना। मीन्स दिस इज अ प्लेस ऑफ मॉर्निंग प्लेस एंड सो डू नॉट कॉज एनी कमोशन। तो रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जलियांवाला बाग को कॉमेमोरेट करने के लिए, सब जानते हैं हर बड़े इवेंट को कुछ ना कुछ कॉमेमोरेट किया जाता है, ऐसे जलियांवाला बाग को कॉमेमोरेट करने के लिए इसके 100वीं वर्षगांठ पे PM जी ने हमारे एक सिक्का
कॉइन निकाला है जिसमें आप जलियांवाला बाग की मेमोरी देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा जलियांवाला बाग टॉपिक को, जलियांवाला बाग टॉपिक समझने के बाद हमें एक ही चीज़ ध्यान में आती है कि हमें अपने मार्टियर्स को ट्रिब्यूट देना चाहिए। आज इन्हीं की बदौलत हम चैन की सांस ले रहे हैं। तो मैं आपको साथियों ये कहना चाहता हूँ कि अपने मार्टियर्स को कभी ना भूलें, उन्हें हमेशा श्रद्धांजलि अर्पित करिए। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जय हिंद, जय भारत। और अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के दौरान कोई भी आपको प्रश्न आए तो हमसे आप गाइड ले सकते हैं। थैंक यू साथियों।